हेलो एवरीवन, दिस इज़ एमन खुरम और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13A ऑफ थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1D1 की। और राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें एक टेबल दिया है और कुछ स्टेटमेंट उसकी ये है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल, basketball and tennis respectively. So they have given us a table where we can see the number of students who play different games: volleyball, basketball and tennis. 40 स्टूडेंट्स हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं और 50 स्टूडेंट्स हैं जो टेनिस खेलते हैं। हमने क्या करना है, इसके फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कंप्लीट द पिक्टोग्राम। सो वी हैव टू कंप्लीट दिस पिक्टोग्राम। दे हैव गिवन अस अ की एज वेल ऑन द साइड। One circle, this green ball represents 10 students. So one circle or one ball represents 10 students. By using this particular key, we have to complete this pictogram. So we can do this on right now on the given question as well. So as we can see from the table, 40 students are playing volleyball. So 10 students already are there in the form of this picture. We will draw three more, so that 1, 2 and 3, right? That's how we will represent 40 students are playing volleyball. Now let's go for the basketball. 10 students are already there in the form of this picture, and total 60 students are playing, so we will draw 5 more balls. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In total we need to draw 6 balls if we want to represent 60 students are playing basketball. Now similarly we will draw these balls for tennis players. 10 are already there: 20, 30, 40, 50. And that's how we will complete the pictogram. Why we are using these circles? Because one circle or one ball is equal to 10 students. We are done with this pictogram. Now we will do the second part. In the second part they are saying find the ratio of the number of students who play volleyball to the number of students who play tennis. तो जिसका पहले जिक्र है हम उसको पहले लिखेंगे। वॉलीबॉल स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल, उन्होंने कहा है रेशो निकालें। किसकी? वॉलीबॉल स्टूडेंट्स की रेशो हमने निकालनी है टेनिस प्लेयर्स के साथ। तो टेनिस स्टूडेंट्स, वी विल सी फ्रॉम द अबव गिवन टेबल कि कितने स्टूडेंट्स वॉलीबॉल खेल रहे हैं। वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चे हैं 40 और टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं 50. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 40 रेशो 50, and now we will simplify these two numbers and we can simplify both numbers by number 10. तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5. Now we cannot further simplify these two numbers, so it will be the answer. The answer is 4 ratio 5. We are done with the second part. Now let's go for the third part, and in the third part they are saying express the number of students who play tennis as a percentage of that who play basketball. Okay, हमने इसमें क्या करना है? This is very important part. इसमें हमने क्या करना है, टेनिस प्लेयर को बास्केट बॉल प्लेयर्स की परसेंटेज बनाना है। प्रीटी इजी। तो जिसको आपने जिसका जिक्र पहले है उन स्टूडेंट्स को हम न्यूमरेटर बनाएंगे और जिनका जिक्र बाद में है उनको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। एंड टू मेक दिस गिवन इंफॉर्मेशन परसेंटेज हम इसे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी हाउ टू डू इट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस, तो टेनिस प्लेयर्स को हमने परसेंटेज बनाना है बास्केटबॉल प्लेयर्स की। टेनिस प्लेयर्स विल कम इन द न्यूमरेटर एंड बास्केटबॉल प्लेयर्स will come in the denominator, and to make this given information percentage हमें इसे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी चीज़ को हमने अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वी विल मल्टीप्लाई दैट गिवन वैल्यू विद 100%। तो टेनिस प्लेयर हैं 50
और बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, लेट मी सी 60. So 50 will become the numerator, 60 will become the denominator, and to make this given information into percentage, we will multiply it with 100%. Now this 0 I can cut with this 0, right? And 100 fives are 500 divided by 6. This percentage sign will come as it is. Now let's see, we will divide 500 by 6. 6 eighths of 48, remainder is 2. This 0 will come down. 6 threes are 18, remainder is 2. Now we will put decimal and automatically we will get a 0 which will come down. Now 6 threes are 18 and remainder is 2, and that's how it will go on and on. So answer will be 83.3%, right? So we are done with the second part, with the third part of question number 2 as well. That's how हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ की परसेंटेज बनाएंगे. इस तरह हम टेनिस प्लेयर को बास्केटबॉल प्लेयर्स की परसेंटेज बनाएंगे कि टेनिस को हम न्यूमरेटर में रखेंगे टेनिस प्लेयर्स को, और बास्केटबॉल प्लेयर्स को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और इस इंफॉर्मेशन को परसेंटेज में बदलने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100%. Very easy part, but at the same time very important part as well. Now we will start doing question number 3, which is very easy to do. In this question they are saying the table shows the number of copies of a newspaper distributed to households in each year from 2017 to 2021. इस टेबल में उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हाउस होल्ड को सेल हुई हैं फ्रॉम 2017 से 2021 तक. तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है. वैल्यू ये ईयर्स हैं इन फर्स्ट रो में 2017, 18, 19, 20 एंड 21, 5 ईयर्स का डाटा है. नंबर ऑफ़ कॉपीज़ इन थाउजेंड. सो गिवन इंफॉर्मेशन इज़ इन थाउजेंड. 250,000 कॉपीज़ सेल हुई 2017 में न्यूज़पेपर की हाउस होल्ड को. इसी तरह 2018 में 275,000 कॉपीज़ सेल हुई, 290,000 सेल हुई 2019 में, 2020 में 315,000 कॉपीज़ सेल हुई एंड 280,000 कॉपीज़ सेल हुई न्यूज़पेपर की 2021 में. हमने क्या करना है, यूज़ अ बार ग्राफ. ओके, सो वी विल मेक अ बार ग्राफ, यूज़ अ बार ग्राफ to illustrate the above information. So we just need to make a bar graph to represent this given information. Pretty easy to do. Let's see how to do it. हम सबसे पहले oh, my drawing is, we will draw some lines, maybe it becomes easy. That's how we will do this, and let me draw it with more accuracy. I will take this line, and that's how we will. So this is x-axis and this side is called y-axis. जो भी इस टेबल में दो इंफॉर्मेशन गिवन है, लेट से मैं ईयर्स को आई एम टेकिंग ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहाँ मैं ईयर्स ड्रॉ करूँगी, ईयर्स, और यहाँ मैं वाई एक्सिस के साथ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ इन थाउजेंड्स ड्रॉ करूँगी. सो इट विल बी नंबर ऑफ कॉपीज़ इन थाउजेंड. किसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं ये? न्यूज़पेपर के. नंबर ऑफ़ कॉपीज़ newspaper in thousands, value is in thousands. अब यहाँ मैं years लिखूँगी. here I will write 2017, here I will write 2018, here 2019, here I will say 2020, and here I have 2021. So that's how I have taken all 5 years on x-axis, और y-axis पे हमने अपनी वैल्यूज़ को देखना है. वैल्यू स्टार्ट हो रही है 250 से, फिर 275, 290,
280 और 315 यूजुअली ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो 250 से 300 के दरमियान है। तो हमने एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो ताकि बार ग्राफ क्लियरली हमारी विजिबिलिटी क्लियर आए। अगर मैं इस पॉइंट को ज़ीरो कंसिडर करूं और ज़ीरो से यहाँ मैं 50 लूँ, तो हर गैप जो है वो मैं 50-50 का लूँगी। सो दिस विल बी 50, इट विल अप्रॉक्सीमेटली द इक्वल डिस्टेंस ही लेना है। एज आई एम नॉट मेकिंग इट ऑन अ ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर पे भी आप बना सकते हैं। मैं स्क्रीन पे आपकी आसानी के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। सो दिस इज़ 50, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस शुड बी सेम। तो ये ज़ीरो है, यहाँ तक 50 डिस्टेंस है, तो ये 100, नेक्स्ट विल बी 150, उससे नेक्स्ट हो जाएगा 200, उससे नेक्स्ट हो जाएगा 300 और उससे आगे 350। और सारी वैल्यूज़ ये थाउजेंड्स में है, ये जैसे हमने साइड पे लिख भी दिया है। 2017 में 250 नंबर ऑफ़ कॉपी सेल हुई। हमने बार ग्राफ बनाना है, ये है 200 और 50, 100, 150, 200। यहाँ मैंने 250 स्किप कर दिया है, so I will draw it again, 250, then it will be 300 and then it will be 350, right? सब में गैप जो है वो 50-50 का गैप आना चाहिए। सो 250 2017 में कॉपी सेल हुई हैं, तो 250 यहाँ है। यहाँ से हम जाएंगे 250 तक और ये हमारा एक बार ग्राफ आएगा 2000, दैट्स हाउ, राइट। उसके बाद ये 250 हमारी वैल्यू हो गई बार ग्राफ की। आपने स्केल से ड्रॉ करना है और 250 की तक जाना है, एंड इट इज़ वेरी इजी। और याद रखना है ये 2017 से थोड़ा सा पहले से स्टार्ट होगा और थोड़ा सा बाद में एंड होगा। 2017 इसके अंदर फॉल करना चाहिए। 2018 में उन्होंने 275 कॉपी सेल की हैं, तो 275 आएगा 250 और 300 के दरमियान में। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 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 आपने ये स्केल से ड्रॉ करना है। थोड़ा सा मैं इससे पहले स्टार्ट करूँगी। राइट, चलें जी। और फिर हम इसको डिफरेंट कोई पैटर्न भी दे सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आई एम डूइंग दिस, आई एम मेकिंग दिस ग्राफ। ये वैल्यू कहाँ तक आई है? ये वैल्यू आई है 275 तक। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये 250 है, ये 275 है। अब हमने 2019 में देखना है, तो ये 290 है, मतलब 300 से थोड़ा सा कम। तो ये 300 है और ये 300 से थोड़ा सा कम। ओके, so we will draw a bar graph like this. ये आ गया हमारा 290, देखें। और इसके बाद हमारा नंबर जो है वो है 300। 2020 में 315। सो 300 ये है, 310 और 15 थोड़ा सा 300 से ऊपर। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और 2020 में थोड़ा सा उससे ऊपर जाना है, पीछे आना है, एट दैट्स हाउ 315। और 2021 में 280 है, तो 280 जो है वो 275 से भी थोड़ा सा ऊपर होगा। ये 270 था, इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा 280, राइट। तो ये और ये आ जाएगा हमारा 280। That's how we will make the bar graph, and it is very easy to draw. You can draw all these, you will definitely draw all these graphs with the scale. We can draw a different pattern inside. We can use different colors as well.
and that's how we will make the bar graph. I have written the numbers inside ताकि हमें पता लगे कौन सा नंबर कितना, बार ग्राफ कितना है. That's how you will make the bar graph. Clearly हमें समझ आ रही है कि 2020 में हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉपी सेल हुई कितनी, 315. बस उन्होंने हमें यही कहा था कि हमने गिवन इन्फॉर्मेशन को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. सो वी हैव डन द सेम. दैट्स हाउ वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज 13A. And thank you for watching, and but don't forget to like and subscribe Solve with Aman. Thank you so much for watching the video.